اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ مرزا داغ دہلوی کا ایک مشہور شعر جو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پہ محمد شاداب انصاری ہیں۔ آج ہم لوگ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 20 ستمبر ہے اور اگلے دن یعنی 21 ستمبر کو صوبہ بہار میں ششماہی امتحان منعقد ہو رہا ہے، جس میں اردو کے طلبہ و طالبات اپنا امتحان مکمل کریں گے، دیں گے۔ اسی ضمن میں اسی سلسلے میں ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں، جس میں ششماہی امتحان کے سبب جو بھی سلیبس کے اعتبار سے جو بھی نصاب میں چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعت کے حوالے سے اردو کتاب فروزہ کا حصہ اول، دوم اور سوم کے متعلق ہم سوال و جواب کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں۔ تمام سوال و جواب پہ مشق کریں گے، کس طریقے سے اس کی ریویژن یا مشق ممکن ہو پائے گا۔ تمام سوالوں کو دیکھیں گے اور ان سوالات کو بھی دیکھیں گے جو پچھلے سال میں یا پچھلی بار جو آتے رہے ہیں، کس طرح کے کون سے سبق کے حوالے سے خاص موضوع رکھتے ہیں، اہمیت رکھتا ہے، اس سبق کے حوالے سے بھی تمام تر سوالات و جوابات پہ ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اب آئیے بغیر کسی تمہید کے آپ کو بتاتے چلیں، اس ویڈیو کے سیشن میں آپ جان پائیں گے 6 اور 7th 8th کلاس کے اردو کتاب فروزہ کے تمام تر سوالات و جوابات جو ششماہی امتحان کے معاملے میں بہت ضروری ہے۔ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اب ویڈیو کی شروعات کرنے والے ہیں اور اسی ویڈیو کے سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ ششماہی امتحان کے یا پھر سالانہ امتحان احتساب کے سبب جو بھی بچوں کو، طلبہ و طالبات کو، خاص کر پریشانی اساتذہ کرام کو بھی ہوتی ہے جب ششماہی امتحان احتساب میں بچے بیٹھتے ہیں دینے کے لیے، اور اس وقت ان کو کیا کیا چیزیں بھرنی ہوتی ہے، جو پرچہ ہوتا ہے یا پھر جو شیٹ ہوتی ہے اس پہ، اس کے متعلق ہم آپ کو تخت پہ لے کے یعنی بورڈ پہ لے کے چلیں گے۔ چونکہ تخت سیاہ کے معنی بلیک بورڈ ہوتا ہے، تو بلیک بورڈ تو دستیاب نہیں ہے، عموماً وائٹ بورڈ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں کہ کن چیزوں کو پوچھا جاتا ہے۔ مثلاً جس میں طالب علم کا نام ہوتا ہے، رول نمبر ہوتا ہے، اسکول کا نام، بلاک، CRC کا نام اور ضلع وغیرہ کہ کس طریقے سے ہم اسے مکمل کریں گے، بھریں گے، اس کے حوالے سے بھی یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ششماہی احتساب کے سبب چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعت میں بالخصوص اردو کتاب کے حوالے سے جو اب تک پڑھایا گیا، یعنی تقریباً آدھے سلیبس کے اعتبار سے، اسباق کے حوالے سے، ان اسباق کے حوالے سے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، جو خصوصی طور پہ امتحانات وغیرہ میں سوال پوچھے جاتے ہیں، ان سوالوں کے جواب یقینی طور پہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاداب بھی مدد کریں گے اس میں۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اب سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ پہلے ہم ششم یعنی کہ چھٹے کلاس کے درجے کی کتاب سے شروع کریں گے جو فروزہ کا حصہ اول ہے۔ شاداب آپ کو بتاتے چلیں، اس سبق میں کل تعداد اسباق کی جو کل تعداد ہے وہ 22 ہے، ٹھیک ہے، یعنی حمد سے لے کے اور بہادر شاہ کا ہاتھی تک، یہ مکمل 22 اسباق یعنی پاٹھ سوچی کے آدھار پہ بات کریں تو ہیں، جس میں ہم نے طلبہ و طالبات کے حوالے سے بتایا تھا اور ہم نے تقریباً نینی تال وغیرہ کے درمیان یہ سبق کمپلیٹ کیا ہوا ہے، یعنی ہم لوگوں کا جو سلیبس ہے عموماً کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، کہیں کوئی دشواری نہیں ہونے والی ہے طلبہ و طالبات کو۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ ویڈیو کے لنک کو آپ شیئر کر دیجئے گا تاکہ کل جو امتحان ہونے والا ہے اس سے متعلق جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں وہ تمام تر اس کی تیاری مکمل کر لیں، چونکہ ایک ہی ویڈیو میں تمام چیزیں ہم لانے والے ہیں اور یقینی طور پہ جب امتحان میں آپ احتساب میں بیٹھیے گا، امتحان دیجئے گا تو اس سے آپ کو استفادہ حاصل ہوگا، فائدہ ملے گا۔ حمد کے حوالے سے بھی بارہا کو سوال و جواب آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص ٹاپکس ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اور میں نے اپنے طلبہ و طالبات سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ جو فہرست کا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ جو شاعر یا ادیب کا نام جس میں دیا رہتا ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے نا شاداب، چونکہ اس سے بارہا کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا
अब पूछा जा सकता है, छठी क्लास की बात करें शशम के, तो उसमें कि जुगनू के शायर कौन है, ठीक है ना। तो जुगनू के शायर कौन है? हाँ नहीं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। जुगनू जो नज्म है छठी जमात में, उसके शायर जो हैं वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। तो इस हवाले से भी पूछा जा सकता है, दे देगा कि दो बैल किसकी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैल है। तो ये तमाम तर सवालात सरसरी तौर पे आप फहरिस्त का जो हिस्सा है, जो मैं बारहा कोशिश करता रहा कि हमारे तलबा व तलबात इसको याद कर लें, चूंकि इस तरह के इम्तिहानात वगैरह में सवाल पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बिलखुसूस बगैर किसी ताखीर के, हम सोच रहे हैं कि कम वक्त में आप इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल कर पाएं और अच्छे से अच्छे नंबरात आपको हासिल हो पाएं, ठीक है। ये बिलखुसूस दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से। तो हम्द और दो बैल, जुगनू, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, एहसान का बदला एहसान, वतन का राग, गंगा नदी, काबली वाला, गांधी जी, कंप्यूटर, कहना बड़ों का मानो, नैनीताल और कंजूस की कहानी। ये बिलखुसूस 13 असबाब हैं, हो रहे हैं, लेसन्स हो रहा है, लेकिन हम इसमें भी छाट देते हैं। हम जो सवाल अमूमन पूछे जाने हैं और जो मेरे हिसाब से लगता है कि वो सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। हम के हवाले से हम सभी जानते हैं कि वह नज्म जिसमें खुदा की तारीफ या बड़ाई बयान की जाए, यानी खुदा की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। आप भी जानते हैं बखूबी तौर पे, मैं बारहा अपने तलबा व तालबात को याद कराने की मशक भी करते रहे हैं। दो बैल के हवाले से सवाल हो सकता है कि दो बैल जो कहानी है उसको अपनी जुबान में लिखे, चूंकि ये कहानी थोड़ी तवील है, तवील के माने बड़ी है ना, जिसमें झूरी का वाक्य है, गया के पास फिर बैलों का जाना होता है, फिर वापस आ जाना होता है। तो इस तमाम कहानी को आप एक बार सरसरी तौर पे समझ सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि दो बैल कहानी को अपनी जुबान में लिखिए, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी हुई कहानी है। इसके अलावा जो खास सबसे बेहतरीन टॉपिक मुझे लगता है वो है जुगनू। कौन सा है? जुगनू। जुगनू बेहतरीन टॉपिक है, चूंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है, बड़ी अहमियत है। और उन्होंने इस जुगनू नज्म के हवाले से बताया है कि परिंदा जो होता है, जिसे हम चिड़िया कहते हैं, ठीक है, परिंदा जब होता है, जब उड़ता है, तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? रोशनी की जरूरत होती है। लेकिन जुगनू वाहिद एक ऐसा कीड़ा है जिसे उड़ते वक्त किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि जुगनू बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपके लिए होगा, लेसन होगा। इसके सवाल जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। इसके अलावा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये एक बेहतरीन सबक आमोज कहानी है जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हवाले से पेश की गई है। आपको मालूम है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा हैं मुसलमानों के, वो कौन से खलीफा थे? कितने नंबर पे? चौथे? नहीं, चौथे खलीफा तो हजरत अली करमुल्ला वजुल करीम थे। वो दूसरे खलीफा थे, यानी जिसको दोयम कहा जाता है, दूसरे खलीफा थे। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद उस्मान गनी और फिर हजरत अली। तो ये दूसरे नंबर के खलीफा हैं और इनके खिलाफत का जमाना कितना रहा? 2 साल 5 महीने। शाबाश, बहुत अच्छा। तो शादाब ने सही जवाब दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं इसका। तो 2 साल 5 महीने महज इन्होंने अपनी खिलाफत का दौर किया और बेहतरीन तरीके से इन्होंने नुमाइंदगी की। और उस वक्त में बैतुल माल का निज़ाम था, वो भी मैंने आपको बताया था, समझाया है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से ये आ सकता है कि उनका जो दौर था वो किस तरीके का था। तो वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारते थे, लोगों का ख्याल रखते थे और किसी का हक नहीं मारते थे। बैतुल माल में पैसे जमा किए हुए गरीब और मिस्किन की मदद करना चाहते थे ना। इसके हवाले से ये है। मुझे उम्मीद है कि इससे मुतालिक जो सवाल आएंगे वो आ जाए। बिलखुसूस हम बात करेंगे जुगनू पे अलग से, क्योंकि जुगनू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए होता है। एहसान का बदला एहसान से भी बहुत कुछ खास सवाल नहीं आने की उम्मीद है। हालांकि इसमें जो ताजिर है, या ताजिर के माने तिजारत करने वाला, जिसको व्यापारी या बिजनेसमैन कहा जा सकता है, तो वो एक अरब से घोड़ा खरीदता है जो बड़ा ही बेशकीमती होता है और वो घोड़ा उसकी फिर जान बचाता है। इस कहानी को मैंने दर्जे में बखूबी तौर पे पढ़ाया भी है, समझाया भी है, उसके तमाम तर सवालात भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अमूमन शशमाही एहतसाब में ये ख्याल रखने की बात है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं।
इसमें खासकर जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो नज्म के एतबार से सवाल आते हैं। किससे आते हैं? नज्म से, ठीक है। और सालाना जब इम्तिहान होता है आपका तो दोनों तरह के मिक्स सवाल आते हैं, यानी चूंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल बर्डन नहीं देना होता है बच्चों पे, और वो इम्तिहान से मुतालिक अपने को जोड़ पाएँ, उससे वाबस्तगी हासिल कर पाएँ, इस लिहाज से ये ज़रूरी होता है। और देखिए, जुगनू के बाद मैं अगर दूसरे नंबर पे किसी को रखूँगा तो वतन का राग। वतन का राग मालूम है आपके शायर कौन है? अफसर मेरठी, याद कर लीजिएगा। वतन के राग के शायर कौन है? अफसर मेरठी हैं। इसके ये दो टॉपिक्स में हम बात करेंगे। गंगा नदी के हवाले से एक सवाल हो सकता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री के बर्फ के अवसाद से निकलती है, यानी हिमालय के तराई से गंगोत्री नामी मकाम से निकलती है, जो कि बर्फ के पिघलने यानी आबशार झरने से निकलती है, ठीक है। काबली वाला के हवाले से ये सवाल हो सकता है कि काबली वाला कौन था, और मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी 5 बरस की लड़की थी, बच्ची थी, और काबली वाला मेवे बेचा करता था। और गांधी जी के हवाले से आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो बाबाए कौम कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है उन्हें, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाले शख्स थे, ठीक है। अब कंप्यूटर के हवाले से भी बहुत कुछ खास सवाल नहीं आते हैं। कंप्यूटर से हमें क्या फायदे हैं, एक सवाल बहुत जरूरी हो सकता है, ठीक है। अब कहना बड़ों का मानो, कहना बड़ों का मानो जो है ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है, जिसमें नसीहत की गई है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उन पे अमल करनी चाहिए, और वो जो हमारे लिए सही राह बताते हैं उस पे हमें चलनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब नैनीताल है, नैनीताल सबक आपने पढ़ा है कि नहीं? नैनीताल नहीं पढ़े हो? नैनीताल दरअसल घूमने तफरीही जगह है, यानी घूमने फिरने की खास जगह है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन इस तरीके से हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और वादा कर दें आपको कि 2 बैल यानी हमद, जिसमें खुदा की तारीफ और तौसीफ की जाती है, हम ये हो गया। दूसरा 2 बैल की कहानी अपनी ज़बान में लिखना हो सकता है आ जाए। जुगनू के हवाले से मौलाना डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज्म है, जुगनू की रोशनी है काशाना ए चमन में, या सम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में। तो ये नज्म आप याद कर लीजिए, इसके 4 बंद या 8 बंद याद कर लीजिएगा, क्योंकि नज्म का अमूमन आता है हर एहतसाब, हर इम्तिहान में नज्म को लिखने के लिए आता है या उसका मानी लिखने के लिए। तो जुगनू इस सबक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हवाले से भी मैंने बता दिया कि उनके खिलाफत का ज़माना कैसा था, उनका तौर तरीका कैसा था। इसके अलावा वतन के राग के हवाले से अफसर मेरठी कहते हैं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत रखनी चाहिए और तमाम मजहब के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, यही है ना, ठीक है। और उसके बाद कहना बड़ों का मानो मैंने बता दिया कि इस कहना बड़ों के मानों के हवाले से है कि हमें बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, वो जो हमें सही मशवरा करें, सही सलाह दें, उसको माननी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये पहले से लेके हम 2 बैल, जुगनू, और उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वतन का राग, और फिर कहें तो कहना बड़ों का मानो, अगर इस टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा तो यकीनी तौर पे आपके बेहतर नंबर आ सकते हैं। बाकी 1-2 सवाल अगर छूटता है तो बखूबी तौर पे वो आपके जहन में होगा, ठीक है, उसकी तरफ आप तवज्जो दीजिएगा। लेकिन पहले ये सवालात हैं। अब किस तरह के सवालात होते हैं? सवाल आता है तो मारूदी सवालात, मारूदी के माने एक सवाल दिया रहेगा, उसके 4 हिस्से होते हैं, ठीक है ना, उसमें से एक सही का जवाब लगाना होता है। जैसे दे सकता है कि हमद किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपके हो सकता है नबी की तारीफ में लिखी गई नज्म को, खुदा की तारीफ में लिखी गई नज्म को, बड़े बुजुर्गों की तारीफ में लिखी गई नज्म को, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो सकता, कौन सा ऑप्शन सही होगा? खुदा की तारीफ में लिखी गई नज्म को। इस तरीके का सवाल आ सकता है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो मिलान करने के लिए होते हैं ना, अलिफ कॉलम अलिफ को कॉलम बे के जानिब मिलान करना है, उसको पहले सवाल को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, तब आपके सवालों के जवाब यकीनी तौर पे आपके जहन में खुद ब खुद आते जाएंगे। ये भी एक चीज़ होता है कि हम पढ़े ज़रूर है लेकिन एट ए टाइम नहीं आता है मौजूदा समय पे। तो आप पहले सरसरी तौर पे पूरे सवाल को पढ़िएगा और जवाब खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इसका भी खास ख्याल हमें रखना है।
ठीक है। और ये बता दिए, इसके अलावा कोला मल्लिफ से बेका हो गया। अब है खाली जगहों को पुर करना, जैसे नज्म देता, जुगनू की रोशनी है खाली जगह चमन में, काशाना चमन में, या खाली जगह जल रही है फूलों की अंजुमन में, तो शमा, इस तरीके से भी देख लीजिएगा। इसके अलावा खाली जगहों को पुर करना हो गया। सही और गलत का निशान लगाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, चूँकि कुछ ऐसे जुमले दिए रहते हैं जो गलत होते हैं। तो अगर आपने कहानी पढ़ी है, नज़्म पढ़ा है, तो एकदम आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जितने भी पिछले एग्ज़ाम आपने दिए हैं, वो सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक अध्ययन की बात करें या विज्ञान की बात करें, तो उसमें आपको कहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई है। तो उम्मीद करते हैं, या राष्ट्रभाषा का जो पेपर हुआ है उर्दू तलबा व तलबात के लिए, तो उसमें भी कहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई। और यकीन करते हैं कि आपके नंबर बेहतरीन हो, अच्छे नंबरात से आप हासिल करें और कामयाबी हासिल करके आपको खुशी हो। तो ये आप खासकर ख्याल रखें। आखिरी फिर ज़िम्न में हम आपको वादा करा दें, हम दो बैल, जुगनू और वतन का राग, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का चैप्टर देख लीजिएगा, और कहना बड़ों का मानो, ये कुछ खास चीज़ें हैं। बाकी कंप्यूटर के हवाले से तो कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, नैनीताल कैसी जगह है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो बारहा ये सवाल आपको याद कराते रहे हैं। इन चीज़ों को देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता के फिर आप शशम के बाद सप्तम की तरफ चलेंगे और 7वीं दर्जे की उर्दू की किताब के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। उसमें ये है कि शायर के शोरा के नाम, यानी अदीब का नाम, जैसे हमद किसने लिखा, ठीक है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा। अब कोई आपसे पूछे कि दो बैल किसने लिखा, शाबाश। जुगनू किसने लिखा, हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसके शायर हैं। अब आ सकता है कि वतन का राग के शायर कौन है, वतन का राग किसने लिखा है, शायर कौन है, याद नहीं है, याद कीजिए। आप भी नाज़रीन हमारे तलबा व तालिबात, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ये सब सवाल अमूमन आते हैं और फिर आप उस समय परेशान हो जाइएगा। अफसर मेरठी, वतन का राग किसने लिखा है, अफसर मेरठी ने लिखा है। इसके अलावा काबली वाला जो है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। कहना बड़ों का मानो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, यानी दो नज़में जो हैं वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी है। पहला हम, यानी खुदा से दुआ के हवाले से लिखने हैं, और दूसरा है कहना बड़ों का मानो। दो है, आप याद कर लीजिए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का हमद और कहना बड़ों का मानो। इस तरीके से भी आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा, चूंकि इस तरह के सवाल इम्तिहान में अक्सर व बेशतर पूछे जाते रहे हैं। और इससे ज़्यादा आपको, अब चलिए बस सरसरी तौर पे, यानी कम वक्त में सिर्फ जुगनू के हवाले से आपको वादा करा दें कि जुगनू में किस तरह के सवाल होंगे, और उसके बाद फिर हम शशम के बाद फिर 7वीं दर्जे, छठे के बाद 7वीं दर्जे की तरफ चलेंगे। देखिए, जुगनू नज़्म को आप याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। मौलाना डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म है। इसमें जो सवाल है बस सरसरी तौर पे आपको वादा करा दें। जुगनू की रोशनी हमें कहाँ दिखाई पड़ती है, जुगनू की रोशनी हमें छत या अंधेरे में दिखाई पड़ती है, ठीक है। परवाना और जुगनू में क्या फर्क है, परवाना जुगनू में ये फर्क है कि परवाना रोशनी का तालिब और जुगनू रोशनी का सरापा है। हाँ, तो थोड़ा मुश्किल हो गया। आसान लहजों में ये बात कर, लहजे में, परवाना और जुगनू में ये फर्क है, परवाना यानी परिंदा को उड़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, जबकि जुगनू को इसकी रोशनी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इस चीज का जवाब भी आप देखेंगे तो सफा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसी के हवाले से कहाँ दिया है इसका जवाब, 16 वाले हिस्से में है, थोड़ा प्रिंटिंग में छपने में इधर, हाँ 16 नंबर के हिस्से में आपको गौर कीजिए वाले में इसका जवाब भी मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। इस नज़्म में मेहताब की किरण किसे कहा गया है, इस नज़्म में मेहताब की किरण जुगनू को कहा गया है, ठीक है। जुगनू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है, जुगनू नज़्म डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायर की लिखी, ठीक है। यानी जुगनू जो नज़्म है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। इस तरीके से आप थोड़ा इसकी तैयारी कर लीजिए, यकीनी तौर पे आपके बेहतर नंबरात हासिल कर पाएंगे और अच्छे अपनी काबिलियत ज़ाती इम्तिहान में इसमें आप अपना झंडा गाड़ पाइएगा। तो ये
छठी जमात के हवाले से वीडियोस था। अब इसी वीडियो में, चूंकि हम एक ही वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि तमाम 6th 7th और 8th क्लास के उर्दू किताब फरोज़ा के हवाले से सवाल और जवाब आपको वाज़ा करा दें, चूँकि अलग अलग वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल है और मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है, आप बखूबी तौर पे समझ सकते हैं। नाजरीन, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। अब आइए 7वीं जमात के हवाले से आपको सरसरी तौर पे बता दें कि कितना और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें जो अब तक पढ़ाई हुई है, खुदा से दुआ, बहादुर बच्चा, मेरे बचपन के दिन, सबसे औला व आला हमारा नबी, खुदा बख्श लाइब्रेरी, और उसके बाद हमारा बिहार, हैरत अंगेज टोपी, हमारा वतन, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और गज़ल भी हैं। ठीक है, अब इसके हवाले से जो सवाल अक्सर व बेशतर आते हैं वो आपको वादा करा देते हैं। ठीक है, देखिए हम तो वही रहेगा जो छठी जमात में है कि वह नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। इसके अलावा बहादुर बच्चा में एक सतीश की कहानी है। ठीक है, और फिर आगे बात करें तो इसमें मेरे बचपन के दिन, ये जो मजमून है, जो बातें हैं, आप बीती है APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी के हवाले से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये आप इस सबक को पढ़ लीजिएगा चूँकि इसके सवाल और जवाब अक्सर व बेशतर आते हैं। चूँकि हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत गुजरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसके हवाले से ही सवाल जवाब अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा है खुदा बख्श लाइब्रेरी। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, आपको मालूम है? पटना में। शाबाश, बहुत अच्छा। ये शादाब अभी छठी जमात में है, 7वीं जमात की मैं किताब फरोज़ा के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये बखूबी तौर पे सुन रहे हैं। इन्होंने बताया कि खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में वाक़ है, यकीनी तौर पे पटना में ही है। इसके अलावा आप हमारा बिहार के हवाले से थोड़ी बहुत सरसरी तौर पे देख लीजिएगा। हैरत अंगेज टोपी कहाँ की कहानी है, आपको मालूम है? इटली नहीं, ये फिनलैंड की कहानी है, फिनलैंड की कहानी है। हमारा वतन एक नज्म है और वही चीज़ें मैं फिर दोहरा रहा हूँ तलबा व तालबा 7वीं जमात के बिलखुसूस कि आप जो फहरिस्त का हिस्सा है उसके शायर का नाम, उसके अदीब का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आएगा, हर बार आता है कुछ न कुछ, 2-4 आपके सवाल के जवाब तो यकीनी तौर पर मिल जाएगा। जैसे खुदा से दुआ के शायर शफीउद्दीन नैयर हैं, और इसके अलावा मेरे बचपन के दिन का तो उन्हीं की ज़िंदगी पे आप बीती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हवाले से। और इसके बाद अब हमारा वतन एक नज़्म है जिसके चकबस्त लखनवी हैं, ये शायद याद कर लीजिएगा। एक गज़ल है, सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दाग दहलवी का लिखा हुआ है। और इसके अलावा बहुत कुछ याद करने की, इसमें सबक का कुछ की बहुत ज़्यादा माखूज़ है, दूसरे से लिया गया है, तो ये 2-3 चीज़ें याद कर लीजिएगा, एक खुदा से दुआ का, एक मेरे बचपन के दिन का, और एक हमारा वतन का। ठीक है, चिकबस्त लखनवी, ये 3-4 चीज़ें याद कर लीजिएगा। और यकीनी तौर पे जितना पढ़ाया गया है आपको, खुदा से दुआ, बहादुर बच्चा, मेरे बचपन के दिन, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी के बारे में है, खुदा बख्श लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, तो उसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, पाली, ठीक है, और दुनिया की बेशतर ज़ुबानों की किताबें वहाँ मौजूद हैं, और तकरीबन कुल किताबों की जो तादाद है वो 6000 है, 6000, बल्कि अब तो तकरीबन मौजूदा दौर में मुझे उम्मीद है कि वो 15,000 के आसपास पहुंच गई होगी। ठीक है, तो ये भी है, पटना में वाक़ है खुदा बख्श लाइब्रेरी। हैरत अंगेज टोपी के हवाले से बताया कि फिनलैंड की कहानी है जिसमें एक बच्चा होता है पीका, आपने कहानी सुनी होगी। हमारा वतन चिकबस्त लखनवी की नज़्म है जिसमें अपने वतन से मोहब्बत करने की बात की गई है, बताई गई है। हमारा वतन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस सवालों के मरहले में ये भी आता है कि सही और गलत का निशान लगाना है, दे देगा कि फिनलैंड, अरे हैरत अंगेज टोपी जर्मनी की कहानी है, तो सही है या गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, फिनलैंड की कहानी है। इस तरीके से खाली जगहों को पुर करना यानी मुकम्मल करना होता है, यानी नज्म दे देगा, नज्म का बंद वहाँ 1-2 अल्फाज छोड़े रहेगा, उसको भी आप देख लीजिएगा वो मुकम्मल करने के लिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, खाली जगहों को पुर करना हो गया, सही गलत का निशान लगाना हो गया, हाँ, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना, तो ये शायर वगैरह के नाम दे देता है, किसी खास जगह के मुतालिक दे देगा, या फिर मेरे बचपन के दिन के हवाले से दे सकता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, खुदा बख्श लाइब्रेरी का हो सकता है, किस जगह पे वाक़ है मिलान करना है।
इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप याद कर लेंगे, मजमून भी आता है, बिलखुसूस मैंने नोट्स एक बना रखे हैं क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। मजमून आप समझते हैं क्या होता है? लेख जिसको बोला जाता है, उर्दू में भी छोटे से हिस्से में लेख आता है जिसको ऐसे कहते हैं। दे देगा कि हमारा स्कूल पे मजमून लिखिए, इसके अलावा दे देगा कि अपने वतन पे लिखें या महात्मा गांधी पे लिखिए। बिलखुसूस सबसे मशहूर जो चैप्टर होता है वो ईद होता है। क्या होता है? ईद पे, ज़्यादातर ईद पे देता है, होली दे देगा या रमज़ान दे देगा। इस तरह के भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो उसके मजमून वगैरह की भी देख लीजिएगा। मान लीजिए हमारा स्कूल पे दे दिया तो मेरे स्कूल का नाम फला है, हमारे स्कूल में इतने तकरीबन 16 टीचर्स हैं या उस्ताद हैं, सब अपने अपने निसाब या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ इतने कुल तलबा या तालबात की या कुल बच्चों की तादाद इतनी है, कुल लड़कियों की तादाद इतनी है, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। इस तरीके से आप मजमून को लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा लिखने की, आपको यकीनन नंबर बहुत सारे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और ये हम सभी जानते हैं कि कितने नंबर का इम्तिहान होगा? एक पेपर कितने का? 50 नंबर का होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का ना, 10 से 12 और 1 बजे से 3 बजे तक। ये उर्दू के हवाले से जो इम्तिहान होना है पूरे बिहार में कल, 6ठी 7वीं और 8वीं जमात के उर्दू किताब के हवाले से बच्चों का, वो कल यानी 21 सितंबर 2024 को दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक इम्तिहान होना है। ठीक है शाबाश। तो ये 7वीं जमात के हवाले से आपने देखा, जिसमें आपको हमद याद कर लेना है, मेरे बचपन के दिन। इसके अलावा हमारा वतन चिकबस्त लखनवी की देख लीजिएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी पढ़ लेंगे, और हमारा बिहार और हैरत अंगेज टोपी। तो यही है, बाकी इसमें बिलखुसूस यकीनी तौर पे आपको बहुत सारे सवाल और जवाब आते होंगे। फिर आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि यकीनी तौर पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी वीडियो बनाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उतने सारे सेटअप्स जब आपके पास नहीं होते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हम कोशिश करते रहे हैं कि आपको कहीं किसी तरह की तैयारी में कोई दुश्वारी ना हो, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब 8वीं जमात के हवाले से हम सरसरी तौर पे आपको बता दें, बिल्कुल कम वक्त में, ताकि आप बखूबी तौर पे समझ भी जाएं और आपका ज़्यादा वक्त भी न जाया हो। तो इसमें कुल तादाद जो फहरिस्त के हवाले से है वो 22 है, यानी अमूमन 10 या 11, लेकिन हमें 8वीं जमात में जो तैयारी है उसके हवाले से आपको बता देते हैं। हमद इनायत रहमान की मसूद अजीम आबादी की एक नज़्म है, जिसमें हमद के मानी ही दरअसल खुदा की तारीफ है, जिसमें दुनिया में तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है। इंसान, हैवान, पेड़ पौधा, सूरज, ज़मीन, आसमान, ठीक है, तमाम चीज़ें पैदा की चलने का और उनके ज़िंदगी बसर करने का। हमें ये हिदायत दी कि ईमान पे कायम रहे। इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी हो जाता है। नात क्या कहलाता है, आपको मालूम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ या बड़ाई बयान की है। शाबाश। वह नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। तो उर्दू ज़ुबान के हवाले से भी सवाल आ सकता है कि उर्दू ज़ुबान की बुनियाद कैसे हुई, या उर्दू ज़ुबान में कौन कौन सी ज़ुबानें मिल के बनी हैं। तो उर्दू ज़ुबान में हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की और इसके अलावा संस्कृत और यहाँ की जो मकामी ज़ुबानें हैं उनके मिलने से उर्दू ज़ुबान की बुनियाद पड़ी है। तालीम और तरबियत के हवाले से ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और नसीहत, 2 चैप्टर इसमें बहुत अच्छे हैं। तालीम और तरबियत जो कि सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई है। इस तालीम और तरबियत के हवाले से वो कहते हैं कि तालीम, इंसान अगर खूब पढ़ा लिखा हो, अगर उसके पास तरबियत नहीं हो तो उसका पढ़ाई लिखाई कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता है, बेकार है। लेकिन अगर तालीम के साथ में तरबियत भी उसको मिल जाती है तो वो उसका काम आ जाता है और उसकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरने में आसान हो जाती है। दुनिया के हवाले से नज़ीर अकबर आबादी का ये नज़्म है, जिसको उर्दू नज़्म का बाब आदम कहा गया है। ठीक है, उनको बड़ी अहमियत दी गई है, बानी कहा जाता है उर्दू नज़्म का। दुनिया में के हवाले से वो कहते हैं कि इंसान दुनिया में पैदा होता है, तमाम तर चीज़ें करता है और अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो अपने रंग रूप बदलता है, झगड़े फसाद होते रहते हैं और आखिरकार फिर मामला सुलझता है। लेकिन जो इस दुनिया में जैसा करता है उसके साथ ही वैसा होता है।
और इस सबक में जो सबसे ख़ास मुझे लगता है तालीम व तरबियत, उर्दू ज़ुबान, हम्द और नसीहत। नसीहत एक कहानी है और इस कहानी में एक बच्चा है जो बड़ी ही ज़हन और नेक दिल होता है, उसका नाम है शिबली। क्या नाम है? शिबली। और उसकी वालिदा यानी माँ का किरदार उसमें बड़ा अहम है, चूँकि अजहर एक बच्चा होता है बड़ा शरारती किस्म का। हालांकि शुरू में वो भी अच्छा बच्चा होता है, ज़हीन होता है, लेकिन कुछ गलत सोहबत में आ जाने के बाद, गलत बच्चों के साथ में इख्तियार कर लेने के बाद वो बिगड़ता चला जाता है। उसको शिबली ने अपने वालिदा से मिलाया, उसकी इस्लाह हुई और फिर एक दिन अच्छी तरीके से अपनी तालीम हासिल करके डॉक्टर बन जाता है। क्या बन गया? डॉक्टर बन जाता है और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करता है। तो इस तरीके से आप सवाल और जवाब देख लीजिएगा। फिर वही आपको दोहरा रहे कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो खाली जगहों को भरने वाला हो सकता है, ठीक है, अल्फाज दिए रहेंगे, खाली जगहों को भरने को हो सकता है, सही और गलत की पहचान करनी हो सकती है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना हो सकता है, वाहिद और जमा के हवाले से। वाहिद के माने क्या होता है? एक वचन और जमा के माने बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन, जैसे मुल्क तो इसका जमा होगा ममालिक, मस्जिद शाबाश, मंदिर मनादिर, इस तरीके से हो सकता है। जिद आ सकता है, जिद के माने उल्टा, मालिक नौकर, दिन रात, अमीर गरीब। वाह, बहुत अच्छा, शानदार। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसी वीडियो के हिस्से में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप चश्माही एहतसाब के सबब मूल्यांकन यानी परीक्षा के समय आप जो क्वेश्चन पेपर का जो पहला हिस्सा होता है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, ब्लॉक, सीआरसी का नाम और ज़िला दिया रहता है, उसको कैसे भरते हैं इसी वीडियो के आप देखेंगे हिस्से में। और बखूबी तौर पे फिर आपसे आखिरी तौर पे मुद्दमाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दीगर वेबसाइट यानी सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आगे कोई भी सवाल आपसे छूटने न पाए। ठीक। SCRT बिहार यानी स्टेट काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो विंग है बिहार सरकार का, उसकी जानिब से ये परीक्षा चश्माही एहतसाब दर्जा 1 से लेकर 8वीं तक का होना तय हो पा रहा है। और कल यानी 21 सितंबर को इस कड़ी में उर्दू के तलबा व तालबात इम्तिहान देंगे। उस हवाले से आपको बता दें कि किस तरीके से उसमें पर्चे में क्या क्या भरना होता है और वो बिलखुसूस आपके लिए बेहद ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर वो उसमें गलतियां होंगी तो फिर आपके नंबर वगैरह दर्ज करने में दुश्वारी हो जाती है। आइए आपको वादा करा देते हैं, SCRT को उर्दू की ज़बान में सूबाई काउंसिल बराए तालीमी तहकीक व तरबियत बिहार पटना कहा जाता है और ये शशमाही एहतसाब यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, हाफ ईयरली इवोल्यूशन है, इवैल्यूशन यानी कि एहतसाब है। अब ये जो मजमून है उर्दू के हवाले से है, इसमें जो मुकम्मल ये दर्जा है वो 6ठी, 7वीं और 8वीं दर्जे के हवाले से हम बात कर रहे हैं बिलखुसूस। और जो वक्त है वो 2 घंटे का और कुल नंबरात की तादाद, कुल नंबरात हैं 50 नंबर के एक पेपर का परीक्षा होनी है जिसमें कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी ये है कि तालिबे इल्म का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, ब्लॉक और सीआरसी का नाम, ज़िला, ये कैसे लिखना होता है। अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी तरह की गलती नहीं हो पाएगी आपकी। तो आइए, तालिबे इल्म का नाम, मसलन मान लीजिए किसी का जो भी नाम है अपना नाम लिखिएगा। मसलन अगर बात करें मोहम्मद शादाब अंसारी, अगर मेरा नाम है तो मोहम्मद शादाब, यहाँ अपना नाम आप लिख दीजिएगा अंसारी। अगर आपका रोल नंबर मसलन 10 है तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे 10 आप लिख दीजिएगा, आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल के नाम में जहाँ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम अपनी स्कूल की बात करें तो हिंदी में लिखा जाता है राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय नवादा आरा, तो उतना बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं इसको उर्दू में मिडल स्कूल नवादा आरा, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा ब्लॉक जहाँ पे जिस खित्ते में, जिस इलाके में आपका स्कूल पड़ता है
तो इस मौजूदा दौर में हमारा जो स्कूल है वो है आरा। क्या है? आरा। सीआरसी का नाम आई स्कूल जो होता है किसी न किसी एक स्कूल से टैग होता है, जुड़ा रहता है। तो कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो पहले के समय मिडिल स्कूल वही सीआरसी कहलाता था, लेकिन अब बिहार सरकार की जानिब से, हुकूमत बिहार की तरफ से वो मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों से टैग कर दिया गया है। तो अब हमारा जो स्कूल हो गया है वो है हित नारायण क्षत्रिय स्कूल, ठीक है। माफ़ करिएगा, वो गर्ल्स स्कूल है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, गर्ल्स हाई स्कूल आरा, ठीक है, गर्ल्स हाई स्कूल आरा। अब जिला है, जिला आपका जो भी है जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, भोजपुर, तो भोजपुर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले हिस्से ही, जैसे ही आपको पर्चा मिले, आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, सवालिया पर्चा मिले, वो सबसे पहले आप इसे भर लेंगे और ये बखूबी तौर पे आपका सही होना ज़रूरी है, तभी आपका सवाल ये मुकम्मल होता है और उसके नंबर आपको मिल पाते हैं, ठीक है। तो फिर कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपना जो भी रिएक्शन है वो देते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सबक के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप मोहम्मद शादाब शादाब अंसारी। अंसारी। देखते रहिए अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। बहुत बहुत शुक्रिया।